अंडर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम भी मैडम टू सम एक्सटेंट चेक होगी, बट द बेसिक थिंग इज कि कलेक्टर रेट तो जो है वो है, अगर कलेक्टर रेट को मार्केट रेट पे लाया जाएगा तभी वो अंडर वैल्यूएशन तो चेक हो सकती है। बाकी एज फार एज दिस जीपीए इज कंसर्न्ड, इसके हिसाब से मैं तो ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो राइडर्स लगा रखे हैं, प्रॉपर्टीज को सेलेबल नहीं है, और जो प्रॉपर्टीज वो पर्टिकुलर पीरियड क्रॉस भी कर चुकी हैं उनके ऊपर भी इन्होंने राइडर्स रिमूव नहीं किए हैं। वो पीरियड लोगों को 15 साल की कंडीशन है, 20-20 साल भी हो गए, दैट प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्री होल्ड, दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू सेल दैट प्रॉपर्टी, एंड इफ दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू सेल दैट प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ कन्वेंस डीड, जी, by way of sale deed, they will be compelled to sell it on the GPA. Okay. That was the basic cause कि उनको GPA पे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती थी। Now the thing is वो लोग जो है उनकी प्रॉपर्टी ब्लॉक हो जाएगी till the period administration allows conversion into freehold, that property is saleable, उसकी जब तक सेल डीड अलाउ नहीं करेगी वो प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। Okay. ये जो अभी रूलिंग आई है क्या इसकी वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर की जो वर्किंग है, is it a good step for, I mean, regularizing that? Ultimately, it's going to be a good step. It is only partially, I would say, it is a subject good step. to few reforms. Because जब तक reform नहीं आते, जब तक reform this sector has been always dealt in a piecemeal manner. इसको बड़े टुकड़े-टुकड़े के तौर पे सरकारों ने डील किया है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि इस सेक्टर को एक गोल्डन एग लेइंग हैन है ये सेक्टर। हर एक स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास ये महकमा होता है, वो शो करता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट महकमा सीएम समझता है अपने पास रखना, चाहे वो चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन देना, चाहे वो कॉलोनाइजर को लाइसेंस देना, चाहे वो और कॉलोनाइजर्स को लाइसेंस विद होल्ड करना जब तक ए कॉलोनाइजर के प्लॉट्स या वो पूरे डेवलप होकर बिक ना जाए। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर मैनिपुलेशन, राइटली रॉन्गली, फॉर वॉट एवर रीजन। वी आर नॉट ऑन दैट बिकॉज एट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ओनली ऑन द जीपीए पार्ट ऑफ इट. But this sector must be dealt in a proper manner within the guidelines of law, and appreciating that this sector has a lot of scope for development. And more importantly, India is the second largest country in the world with the population. So population needs shelter, it needs housing. Yes, that is the basic requirement. You cannot treat it as only a golden egg, and you cannot extract pound of flesh, and so that poor people are forced to find land, live in slums. Absolutely. So इस सेक्टर को थोड़ा और तरीके से और ठीक तरीके से देखा जाए बेहतर रहेगा। मिस्टर कमल गुप्ता, इस जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें एक ब्लैक मनी भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्या ये इस चीज को टैकल कर पाएगा? I don't think it will be in a position to tackle it properly. कलेक्टर रेट फिर से? I don't think कलेक्टर रेट फिक्स है, वो कलेक्टर रेट पे चलते हैं। ओके, मिस्टर गुप्ता, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं ब्लैक मनी के इशू को? Let me respond in a two-fold fashion. जी, I would beg to completely disagree from Mr. Malhotra. So far as the law acknowledging and institutionalizing, as it were, that is his basic demand, the real estate mechanism. I don't think any country in the world can afford to institutionalize the trade of real estate agents, however practically necessary or convenient they might be. There is a serious problem here for the integrity of the nation's constitutional and legal system. I am strongly opposed to that on first principles. But having said that, I think the time has come that the state must withdraw from the market, as it has withdrawn from many other areas. It's a case of over-regulation, over-taxation. An extortionate state demands this pound of flesh out of every private transaction. फिर हम अंडरवैल्यू करते हैं not only for the purpose of avoiding stamp duty, taxation purposes के लिए जो black money का है. The state compels ordinary people, ordinary buyers and sellers, ordinary taxpayers to lie throughout. The collector's rate is official untruth. Right. तो ये जो सारा सिस्टम है जो अमेरिका में नहीं है और नहीं है, अब our friends and relatives go within 5 years, they buy consortiums, etc. Sara, quite apart from their lending credit system is also very liberal, but they become owners of property because everything is clean. You do not, जो प्रॉपर्टी को हमने ओवर वैल्यू किया इंडिया में, प्रॉपर्टी इतना बड़ा एसेट है कि बड़े से बड़े जब एससीएस भी लेते, एससीजेड बनाने होते हैं तब भी प्रॉपर्टी के लिए, छोटे छोटे इंसान प्रॉपर्टी के लिए. वी हैव टू लिबरेट, एमेंसिपेट प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑल दीज मिथ्स. The state must be practical on the ground rather than demanding its pound of flesh. हम जीपीए की बात करें जो आज रूलिंग आई उसमें क्या कोई किसी तरह के एक्सेप्शंस हैं, जैसे एपेक्स कोर्ट however it has actually clarified that property sale under genuine transaction through GPA will be considered legal. There are two exceptions drawn by the Supreme Court in the last paragraph.
One is amongst relative, immediate family, yes. husband, wife, brother, sister, etc. Builders also. ये चंडीगढ़ में इनफैक्ट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर द स्टैम्प टैक्स सेक्शन 9 के नीचे एक नोटिफिकेशन भी इशू की हुई है फॉलोइंग पंजाब एंड अदर स्टेट्स. द अदर इज अ वेरी क्यूरियस एक्सेप्शन. उसकी इंप्लीकेशन वर्कआउट करनी है. दैट सीम्स टू बी फंडामेंटली एट वेरिएंस विद द एंटायर थ्रस्ट ऑफ द जजमेंट एंड दैट इज GPAs executed by those who are dealing with big developers and builders. So the land developers, the agreement with the land ये developers. जो लास्ट पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, this will open up the Pandora's box for the future, which means छोटे इंसानों के लिए, मिडिल क्लासेस के लिए, एवरेज कंज्यूमर बायर एंड सेलर के लिए तो आप बड़े स्टिफ है. Prohibition on sale of land, stamp duty, etc. registered conveyance deed. When you deal with men who handle properties and mass crores, right. जिनके लिए अंडर वैल्यूएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने 1 करोड़ देना है या 10 करोड़ देने हैं, वो 3 लाख भी दे देगा. But the problem of अंडर वैल्यूएशन is for the ordinary mass of buyers and dealers, not for the richest builders and developers. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिचेस्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए एक एक्सेप्शन दे दिया. आई एम नॉट वेरी श्योर दैट द राइट थिंग टू डू और दैट्स एथिकल टू डू दैट. मिस्टर शर्मा, ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, क्या इनको ये जो रूलिंग है उसके हिसाब से किसी तरह से इनको चेक में लेके आया जा सकता है? इसका जजमेंट के आने से एक फायदा जरूर होगा कि जो लोग खरीद लेते थे सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे, वो अपने आप को रिस्ट्रेन करेंगे कि जब तक क्लियर टाइटल ट्रांसफर ना हो उनके फेवर में जी, तो उनके मन में ये रहेगा कि इट वुड बी अ रिस्की प्रोपोजिशन टू इन्वेस्ट. सो फ्यूअर टाइटल डिस्प्यूट्स इट वुड लीड टू. सिंस एट द वेरी आउटसेट जब लोग खरीदेंगे ही डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कम, तो आगे टाइटल डिस्प्यूट होंगे भी कम. जब जीपीए रजिस्टर्ड होएगी ही नहीं, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा रजिस्टर्ड द जीपीए. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी क्लियर है. जीपीए रजिस्टर्ड विल बी इन पर्टिकुलर केस. यहाँ ऐसा है, देखिए सेक्शन 7 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर की डेफिनेशन दी हुई है. उसमें एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर ऑन हिज बिहाफ और ऑन अदर्स बिहाफ. सो ऑन अदर्स बिहाफ मतलब जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है. सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 को कहीं भी स्ट्रक डाउन नहीं किया है. सेक्शन 1A ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट में क्लियर है दैट पावर ऑफ अटॉर्नी इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय ए ट्रांसफर्स टू बी by way of that instrument and to the power to do an act on his behalf. Right. जैसे मैं लंदन में बैठा हूं और मेरी चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी है, तो मुझे चंडीगढ़ बेचने के लिए लंदन से आने की जरूरत नहीं है. हाँ. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे ट्रांसफर नहीं कर सकता. जी. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि आप सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी रख के अपने आप को ओनर मालिक नहीं कह सकते. ठीक है, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा थ्रू रजिस्ट्रेशन डीड या कन्वेंस डीड. जब तक आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक जो खरीदेगा वो मालिक नहीं बनेगा. मेरे पास समय कम है. मिस्टर कमल गुप्ता, हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि जो इसकी ग्रोथ है रियल एस्टेट सेक्टर की, वो किसी तरह से हिंडर होगी इसकी वजह से, या वो स्लो डाउन होगा, पर्टिकुलरली अगर हम इस रीजन की बात करें तो? शॉर्ट टर्म के लिए हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आएंगे, बट इन टोटलिटी या इन द लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू बी अ बेनिफिटेड. बट द थिंग इज, मैंने शर्मा जी के साथ थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा. इन्होंने बोला कि जीपीए में जो पावर्स दी होती हैं उसके बेस पे बंदा एग्जीक्यूट करके ऑन बिहाफ ऑफ समबडी ही कैन गेट इट डन. बट बाय गोइंग थ्रू द ग्राउंड लेवल रियलिटीज, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में शर्मा जी इस बात को भली भांति समझते, सॉरी गुप्ता जी इस बात को भली भांति समझते हैं कि हमें जीपीए के बेस पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी नहीं देती. एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. जी. अगर जबकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में स्पेसिफिकली लिखा जाता है दैट ही इज ऑथराइज्ड टू ऑब्टेन एनओसी दिस एंड दैट, सारा कुछ वो बना होता है. अगर जब हम जीपीए करवाते हैं 1.5% स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट हमारे से चार्ज करती है. स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद उसके बाद एग्जीक्यूशन में अगर प्रॉब्लम आती है, वी फील इट इज, आई वुड लाइक टू से इन पंजाबी धोखा ही है साढ़े नाल. ओके, राइट. मैं, हाँ जी, मैं मिस्टर मल्होत्रा आपसे पूछना चाहूंगी, जो सवाल मैंने कमल गुप्ता जी को कहा कि आपको लगता है कि जो ग्रोथ है इस सेक्टर की वो इसकी वजह से हिंडर हो सकती है या स्लो हो सकती है? नहीं, ग्रोथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगा. इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए. जीपीए को बैन करना, इनफैक्चुअल करना पॉसिबल नहीं है. जीपीए की यूटिलिटी रहेगी, इट इज ए लीगल वाइटल डॉक्यूमेंट, इसको बैन नहीं किया जा सकता.
लेकिन हाँ, अगर इसके रेमिफिकेशंस को रोकना है तो उसके लिए पॉलिसीज में सुधार लाना बहुत जरूरी है। राइट, मिस्टर गुप्ता, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। आपको लगता है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है, टेम्परेरीली इट विल ऑपरेट एज अ सेटबैक फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, राइट, बट दिस कांस्टेंट स्ट्रगल between the seesaw battle between the law on the one hand and the economy on the other, the reality on the other, ultimately the real estate sector might transcend this problem. But जो इस सेक्टर का जो काम करने का तरीका है उसको रेगुलराइज करने में ये बहुत मेजर सेटबैक होगा। ऑलराइट, आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। That's all we have in Prime till we meet again. Good luck and goodbye.